Hello students, welcome back. Let's continue with ellipse. In this video, what we are going to do is, we are going to find diameter of ellipse. Diameter आपने बहुत पहले से सुना हुआ है. Everybody know what the diameter is, but really, I will say not. Because diameter आपको क्या लगता है? You think कि diameter is a line passing through center. No. Center is the point of concurrence of diameter. पहले डायमीटर आता है और फिर सेंटर आता है. सेंटर से डायमीटर नहीं, डायमीटर से सेंटर आता है. दैट इज द होल आइडिया. सो व्हाट इज अ डायमीटर? डायमीटर इज लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स. व्हाट डिड आई से? कि डायमीटर इज लोकस ऑफ midpoints of system of parallel chords is called diameter of the conic. अब diameter सर्कल में भी होता है, एलिप्स में भी होता है, पैराबोला में भी होता है और हाइपरबोला में भी होता है. So for all the conics this diameter is actually defined. So suppose if I say कि this is an ellipse and we have to find its diameter. Diameter के लिए क्या बोला? वो locus है mid point का of system of parallel chords. Suppose ये एक particular slope के chords में ले लेता हूं. Let's take chords of slope say m. m स्लोप के कॉर्ड्स ले लिए मैंने. इनके मिड पॉइंट्स का लोकस, सो इट्स मिड पॉइंट विल बी दिस, इसका मिड पॉइंट विल बी दिस, इसका मिड पॉइंट विल बी दिस, समथिंग लाइक दिस. इन सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे टू वी गेट दिस लाइन एंड दिस इज एक्चुअली डायमीटर ऑफ दिस एलिप्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द कॉर्ड्स ऑफ स्लोप m. अब स्लोप का कोर्स वी कैन कीप ऑन चेंजिंग. स्लोप ऑफ द कोर्स वी कैन कीप ऑन चेंजिंग. देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज फॉर दैट एंड दैट्स व्हाई देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स. सो लेट्स से कि अगर कॉर्ड्स का स्लोप m है तो डायमीटर का इक्वेशन वी आर गोइंग टू फाइंड. बट पहले मैं रिजल्ट बता देता हूं. दैट इज माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एम एक्स minus b square upon a square m into x for the standard ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1. This is the result. Now what you see that this is your ellipse, x axis, y axis origin. All these diameters are y equal to mx के फॉर्म में, और y equal to mx मतलब passing through origin. So all these chords, all these diameters actually will be passing through origin and so all the diameters are concurrent at origin. सारे के सारे डायमीटर ओरिजिन से पास हो रहे हैं और जहां से सारे डायमीटर्स पास होते हैं उसको सेंटर बोलते हैं एंड दैट्स व्हाई सेंटर ऑफ एलिप्स इज origin. This ellipse, standard ellipse. So now we are going to derive this. So what we have to do is we have to find locus of midpoints of chords of slope say m. m slope हमें पहले से पता होगा. तो m slope के chords के midpoints का locus. Whenever midpoint के locus की बात करते हैं, what we do? Midpoint का locus find करना है तो let's take it h comma k. और जैसे ही आपको m मिला वी विल फाइंड द कोड यूजिंग t इक्वल टू s1. अब t इक्वल टू s1 है तो t हो जाएगा hx बाई ए स्क्वायर प्लस के वाई बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू s1. s1 क्या हो जाएगा? पूरे एक्सप्रेशन में पूरा h के पुट कर. दैट गिव्स मी h स्क्वायर बाई ए स्क्वायर plus k square by b square minus 1 and that is this chord.
जिसका मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है, तो मिड पॉइंट को HK माना। नाउ वी नो दैट ये जो सारे के सारे कॉर्ड्स हैं इनका स्लोप m है, सो द स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड is minus a by b, that give me h by a square divided by k by b square, which we have already given as m। जो हमने स्लोप फाइंड किया वो स्लोप ऑलरेडी हमें पता है m है, एंड दिस विल गिव यू द लोकस। लोकस के लिए y इक्वल टू hx होता है, तो आई कैन से y equals to minus b square by a square m into x, which is actually this diameter. So अगर m slope का कॉर्ड लेंगे तो minus b square by a square m into x will be actually the corresponding diameter. If I say x square by 25 plus y square by 16 equal to 1, and the question is find diameter corresponding to chords of slope 2. Find diameters of this ellipse corresponding to chords of slope 2. So equation क्या है? y equals to minus b square by a square minus b square by a square into m into x. Done, खत्म हो गया. That is your answer. That is the diameter. ये diameter अगर देखोगे तो this diameter is actually a line passing through origin, and that is the whole idea. तो डायमीटर वैसे तो बहुत सिंपल सा आइडिया है, बट इसके बाद की जो चीजें हैं दैट इज मोर इंटरेस्टिंग. व्हाट आई से कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर. व्हाट इज कॉन्जुगेट डायमीटर? कॉन्जुगेट डायमीटर का मतलब हुआ है, ध्यान से देखना, ये वाले जो कॉर्ड्स है ना इनके करस्पॉन्डिंग डायमीटर ये है, और लेट मी शो यू. सपोज दिस इज अ डायमीटर. अब इस डायमीटर के पैरेलल कॉर्ड्स इफ आई ड्रॉ और उनके मिड पॉइंट्स का लोकस निकालेंगे तो भी एक डायमीटर ही आएगा. तो आई कैन से दिस इज D2 एंड आई विल से दिस इज डायमीटर 1. सो द आइडिया इज कि D1 के पैरेलल कॉर्ड्स के करस्पॉन्डिंग डायमीटर, मतलब D1 के पैरेलल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस D2 और D2 के पैरेलल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस D1 हो तो दे आर कॉल्ड conjugate diameters. So now done. Two diameters D1 and D2 are said to be conjugate diameters. Two diameters D1 and D2 are said to be conjugate diameters if chord parallel to 1 के मिड पॉइंट का लोकस सेकेंड वाला होगा. मतलब locus of midpoint of chord parallel to D1 is D2 and locus of midpoint of chord parallel to D2 is actually D1. So I can say कि D1 and D2 are called conjugate diameters if D1 oblique D2 corresponds to chords parallel to D2 oblique D1. मतलब
D1 and D2 are called conjugate diameters if D1 corresponds to chord parallel to D2 and D2 corresponds to chords parallel to D1. अब कहने को तो ये बहुत सिंपल सा आइडिया है. सो इफ आई से कि D1 का स्लोप अगर मैं m मानता हूं, D1 का स्लोप इफ आई टेक एज m, तो D2 का स्लोप क्या होगा? तो D2 का स्लोप होगा, थिंक ऑफ इट, m के पैरेलल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस इज डायमीटर एंड दैट स्लोप इज माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर m. अगर D1 का स्लोप m है, जस्ट ट्रीट D1 एज अ कॉर्ड. D1 को कॉर्ड की तरह समझ लो. तो अगर D1 एक कॉर्ड है तो ये उसका डायमीटर, और ये अगर कॉर्ड है तो ये इसका डायमीटर. एंड द आइडिया इज कि दे आर कॉन्जुगेट डायमीटर्स अगर हैं तो क्या होगा? ध्यान से देखना. इफ आई से पहले का स्लोप m1 है और दूसरे का स्लोप m2 है, सो व्हाट विल हैपन? उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट, टेल मी व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ दीस टू, एंड दैट इज माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. m1 m2 equals to minus b square by a square. This doesn't work for horizontal and vertical वाले जो diameters होंगे. Like इस केस में if I say कि ये एक diameter है क्योंकि vertical जो chords है उनके mid point का locus है, and this is also a diameter because ये horizontal chords के mid point का locus है. These two will not satisfy this because इसमें एक स्लोप जीरो है और दूसरा इंफिनिटी है. तो जीरो इंटू इंफिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, तो वी कैन नॉट से दैट. बट द आइडिया इज कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला केस अगर इफ यू लीव, देन एवरी कॉन्जुगेट डायमीटर का जो पेयर होगा उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट विल बी माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. नाउ वी हैव सम इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अदर थिंग्स ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, ये जो पॉइंट्स है ना, एंड्स ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर, एंड्स ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर्स, उनके पैरामीटर्स में देयर इज अ रिलेशन. देयर इज अ रिलेशन बिटवीन पैरामीटर्स ऑफ दिस conjugate ends of conjugate diameter, and that is they differ by pi by 2. मतलब अगर इसका पैरामीटर थीटा है, so this will be theta plus pi by 2, theta plus pi, theta plus 3 pi by 2. So note down. Ends of conjugate diameters are such that their parameters differ by multiples of pi by 2. So I'm going to write this and show you a proper diagram. Okay, so the idea is, बहुत ध्यान से देखना, ये एक एलिप्स हो गया. इस एलिप्स के करस्पॉन्डिंग लेट मी ड्रॉ एन ऑक्सिलरी सर्कल. दिस इज ऑक्सिलरी सर्कल, x axis and y axis. I am going to take 4 points on the circle. Let's say 1 point, 2 point, 3 point, and 4 point. Do you see what? These are points on the auxiliary circle जिनके पैरामीटर्स का डिफरेंस 90 है, बिकॉज दे आर ऑल 90 एंगल. ये मैंने अपने मन से लिया है. तो ये अगर थीटा है, सो दिस इज थीटा प्लस पाई बाई 2. दिस विल बी थीटा प्लस पाई. दिस विल बी थीटा प्लस 3 पाई बाई 2 भी बोल सकते हो, और थीटा माइनस पाई बाई 2 भी बोल सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट. नाउ व्हाट इज द पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू दिस ऑन द एलिप्स? एलिप्स पे थीटा पॉइंट कौन सा होगा? तो एलिप्स पे थीटा पॉइंट ये होगा, बिकॉज वी नो दैट सर्कल का पॉइंट ए कॉस थीटा ए साइन थीटा होता है, जबकि एलिप्स का पॉइंट ए कॉस थीटा बी साइन थीटा होता है. तो ऑब्वियसली एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है, तो वर्टिकल लाइन पे होगा, बट ये एक साइन थीटा से थोड़ा कम होगा, बी साइन थीटा. इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट वर्टिकल लाइन आएंगे यहां आया. This point will correspond to this point on ellipse, and this corresponds to this point on ellipse.
अगर आपको ये नहीं समझ में आया है, मतलब आपने पैरामीटर वाला वीडियो नहीं देखा है, वॉच द वीडियो ऑफ इसेंट्रिक एंगल and then you will be able to understand what I mean. Now I am going to join these. One and then this. So this is A, B, C, D, and I can say this is A dash, B dash, C dash, D dash. Now, this ABCD, sorry, AC and BD, AC, BD are basically conjugate diameters. AC and BD are conjugate diameters. So what I am trying to tell you that the ends of conjugate diameters, ends of conjugate diameters are such that their eccentric angles also called parameters differ by मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। कोई भी दो पैरामीटर, कोई भी दो एंड ले लो, देयर आर 4 एंड्स बेसिकली, एनी टू विल डिफर बाय इधर पाई बाय 2 और 2 पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 6 पाई बाय 2। सिंपल फॉर्म में बोले तो थीटा प्लस पाई बाय 2, थीटा प्लस पाई, थीटा प्लस 3 पाई बाय 2 और थीटा माइनस पाई बाय 2। बट आई कैन ऑल्सो से कि दिस इज थीटा प्लस 3 पाई प्लस 7070 पाई। दैट्स ओके, बिकॉज एंगल में 2 पाई ऐड करोगे, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। सो दैट इज अ प्रॉपर्टी दैट कॉन्जुगेट डायमीटर्स के एंड पॉइंट्स के जो पैरामीटर्स होते हैं, इसेंट्रिक एंगल्स होते हैं, दे डिफर बाय अ मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। नाउ ये जो कॉन्जुगेट डायमीटर्स है वो परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। पाई बाय 2 का डिफरेंस है इसेंट्रिक एंगल में, इट मींस दे आर नॉट, इसका मतलब वो राइट एंगल होंगे नहीं, बिकॉज सो AC परपेंडिकुलर टू BD इज नॉट ट्रू। हाँ, वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला केस होगा तो चलेगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाले केस में होता है। अदरवाइज इफ यू सी टू ब्लू लाइंस व्हिच आर एक्चुअल डायमीटर्स आर नॉट परपेंडिकुलर, बट A dash C dash और B dash D dash, B dash D dash और A dash C dash is all actually perpendicular। तो जो एक्चुअल डायमीटर्स हैं एलिप्स के वो परपेंडिकुलर नहीं होंगे, लेकिन उनके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो डायमीटर्स बनेंगे सर्कल के, ऑक्सिलरी सर्कल के, दे विल बी परपेंडिकुलर। तो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट information about the diameter and conjugate diameter. So now we will be solving some questions and then see how we are going to apply them. So we are going to solve some questions. Let's say that there is an ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1, or let's say x square by 25 plus y square by 16 equals to 1. What we have to find is, suppose OA and OB are ends of a diameter, conjugate diameter actually. Also remember that AC and BD are conjugate diameters, then OA, OB, OC, OD are called semi-conjugate diameters. सेमी डायमीटर्स बोल सकते हैं, तो OA OB आर सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर्स। दैट्स ओके। तो यू हैव टू फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ दिस कॉर्ड AB. सो A and B are ends of a pair of conjugate diameters. Then you have to find locus of midpoint of AB. अब ये मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है।
सो कॉन्जुगेट डायमीटर्स की जब भी बात आती है तो फर्स्ट थिंग दैट शुड कम टू द माइंड इज m1 m2 इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एंड सेकेंड कि उनके इसेंट्रिक एंगल्स का डिफरेंस पाई बाय 2 होता है. तो इफ आई से दिस इज थीटा तो दिस विल बी थीटा प्लस पाई बाय 2 मीन्स वी नो द पॉइंट ए एंड बी. और अगर ए और बी पॉइंट पता है तो दिस एम पॉइंट विल बी व्हाट? एम पॉइंट इज बेसिकली मिड पॉइंट. अब थीटा का मतलब एग्जैक्टली पॉइंट क्या हुआ? ए कोस थीटा कॉमा बी साइन थीटा एंड दिस विल गिव यू व्हाट? ए cos 90 plus theta is minus sin theta and b sin 90 plus theta is cos theta. I can also take अच्छा एक काम करते हैं, जनरल केस ले लेते हैं. That will be actually far better. जनरल केस ले लिया. So अब इसका मिड पॉइंट हो जाएगा a cos theta minus a sin theta by 2 comma y coordinate y1 plus y2 by 2 b sin theta plus b cos theta by 2. We have to find its locus and so it will be what? It will be hk, or you can directly write x comma y because now we have a cos theta minus sin theta equals to 2h and 2k will be b into sin theta plus cos theta. Somehow we need to eliminate this theta to actually find the locus. और वो तो बहुत आसान है in this case. What we do? We are going to square and add. Square and add करोगे तो 4h square by a square plus 4k square by b square equals to, चलो try to find out what would be RHS. 2h by a का whole square, that is this square, plus 2k by b का whole square equal to क्या होगा? इन दोनों के स्क्वायर का सम. इन दोनों के स्क्वायर का सम करोगे तो 2 आएगा. सो आई कैन से कि फाइनली लोकस विल बी x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 by 2. x square by a square plus y square by b square equals to 1 by 2. That is the idea. तो क्वेश्चन वॉज कि एक कॉन्जुगेट डायमीटर है OA और OB, हाफ बोलेंगे तो O इज बेसिकली सेंटर, तो AB के मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है. सेकेंड आइडिया व्हाट वी कैन डू. द सेकेंड आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन इज मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है एंड वेन एवर वी हैव टू फाइंड मिड पॉइंट का लोकस, मिड पॉइंट को HK तो मानना ही है और साथ में वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड AB यूजिंग T इक्वल टू S1. T इक्वल टू S1 से वी कैन फाइंड दिस एंड दैट गिव्स मी, चलो, HX बाई A स्क्वायर plus ky by b square minus 1 I am not writing because ultimately वो cancel हो जाएगा और अभी तक बहुत कैलकुलेशन कर चुके हैं तो now you will be understanding that -1 cancel हो गया. Now this is the chord AB. लेकिन अभी तक हमने कॉन्जुगेट डायमीटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाया और कॉन्जुगेट डायमीटर का कॉन्सेप्ट क्या है कि दिस इज थीटा एंड देन दिस इज थीटा प्लस पाई बाय 2. सो दिस कॉर्ड AB का इक्वेशन यहां से मिला. वन मोर वे वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड AB दैट इज अ कॉर्ड ज्वाइनिंग थीटा एंड थीटा प्लस पाई बाय 2. थीटा एंड थीटा प्लस पाई बाय 2 को ज्वाइन करने वाले कॉर्ड का इक्वेशन और वो होता है x बाय a कोस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस y बाय b साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इक्वल्स टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 दैट इज 1 बाय रूट 2. सो ध्यान से देखना, मिड पॉइंट पथ का लोकस फाइंड करना था तो मिड पॉइंट को आई टुक h कॉमा k एंड देन मिड पॉइंट इफ वी नो देन वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड यूजिंग t इक्वल टू S1. और दूसरा कॉन्जुगेट डायमीटर के एंड है तो वहां से भी वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड.
Now these two are basically same chord. ये भी AB का equation है and this also equation of AB. So we are going to compare them. A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2. So I can say H by A square divided by cos theta plus pi by 4 upon A equals to K by B square upon sin theta plus pi by 4 upon B equals to H square by A square plus Y square by B square K square by B square upon 1 by root 2. And now we are actually going to eliminate. कैसे eliminate करेंगे? So that is what it is all about. Let's एक बार try करो सब लोग. Pause the video and try to find the value of something which is not using theta. मतलब you are going to eliminate theta. Theta को eliminate करो, pause कर लो. I am going to do this, and that is done by let this be lambda. बहुत बार ऐसा बता चुका हूं मैं. Whenever we have three parts equal to each other, we always take it as lambda. अगर मैं lambda ले लेता हूं तो I can say H equals to lambda A cos theta plus pi by 4. K will be lambda B sin theta plus pi by 4. And that we are going to use here. So H square will be what? H square will be इसका स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा कर सकते हैं. या फिर दूसरा आइडिया, वी हैव टू एलिमिनेट कॉस एंड साइन. सो व्हाट वी कैन डू इज कॉस थीटा प्लस पाई बाय 4 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा प्लस पाई बाय 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1. दैट इज क्लियर. तो ये जो फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया उससे फास्ट वी कैन एलिमिनेट साइन एंड कॉस बिकॉज वी नो दैट ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर इफ यू रिमेंबर, सो देयर वाज दीस थ्री आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1. तो जो पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, व्हाट वाज द एप्लीकेशन ऑफ दैट? The application for that identity is usually to eliminate theta, which is what we are going to do here. So what is the value of cos? Cos का value है this upon this. So that will give you h square by a square और cos का square भी करना है upon h square by a square k square by b square का square into 2. If you understand this, ये 1 by root 2 से डिवाइड किया तो इंटू रूट 2 हो गया ना, प्लस साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर का वैल्यू के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये पूरा स्क्वायर इंटू 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1. सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट, ध्यान से देखना, एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ये पूरा का पूरा उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू दिस होल पार्ट गो हेयर एंड दैट गिव मी 2 एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का होल स्क्वायर. नाउ व्हाट डू यू सी? व्हाट आई सी दैट ये स्क्वायर से ये पूरा कैंसिल हो गया. सो फाइनली व्हाट आई हैव इज एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर k square by b square equals to 1 by 2 and that is basically the locus. hk की जगह xy पुट करेंगे and we will find the answer. So क्वेश्चन तो फर्स्ट वाला काफी सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया था, फिर भी मैंने आपको सेकंड मेथड बताया बिकॉज व्हाट आई से कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक अच्छी बात होती है और एक खराब बात होती है. अच्छी बात क्या कि बहुत सारे मेथड है, कोई भी यूज करोगे आंसर आएगा. एंड बैड थिंग इज इतने सारे मेथड होते हैं पता नहीं चलता है कि कौन सा यूज करें.
So what I'm trying to tell you, whatever you use, you are definitely going to get the answer. बस method को consistently follow करोगे, you will be able to find. So the idea is कि usually there are two aspects, two ways to approach the questions of locus. एक, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता गया वैसे वैसे करते जाओ और फाइनली लोकस आ जाएगा, या फिर सीधा HK से स्टार्ट करो और फिर जो कंडीशन लिखा है वो लगा दो. So try to understand this and you'll be able to apply these concepts to so many questions. So now I'm going to solve some more questions. Okay, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं. x square by a square plus y square by b square equal to 1. इसका एक डायमीटर आपको गिवन है. A diameter is given as y equals to b by ax. Then what will be the conjugate diameter? इस particular diameter के conjugate diameter क्या होगा? And the answer is, we know that कि m1 m2 equals to minus b square by a square होता है. उसमें m1 is b by a. तो what will be m2? m2 will be minus b by a. m2 will be minus b by a. So the conjugate diameter will be y equals to mx. खत्म. y equal to b by a and y equal to minus b by a are basically conjugate diameters. ध्यान से देखना, इन दोनों का स्लोप अगर देखोगे तो m1 m2 इक्वल टू -1 नहीं है. m1 m2 इज नॉट इक्वल टू -1, तो दे आर नॉट परपेंडिकुलर. लेकिन जो पॉइंट्स जो होते हैं उसके इसेंट्रिक एंगल्स का डिफरेंस π/2 होता है. तो इसेंट्रिक एंगल का जो डिफरेंस होता है वो लाइंस के बीच का एंगल होगा. दैट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ एलिप्स, दैट इज ओनली ट्रू इन केस ऑफ सर्कल्स. ओके, एक क्वेश्चन करते हैं. लेट्स से कि एक एलिप्स है एंड दिस इज अ पेयर ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर्स, से A, B, C and D. तो AC and BD आर कॉन्जुगेट डायमीटर्स. इनके जो टैंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, टैंजेंट्स at A and B, where OA and OB are conjugate diameters, intersect at P. तो इस P का locus find करना है. You have to find locus of, let me write the question. Find locus of point of intersection of tangents at the ends of conjugate diameters OA and OB. OA और OB के एंड पॉइंट पे जो tangents है उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस फाइंड करो. सो वी कैन से कि जो A है वो थीटा है, सो B विल बी थीटा प्लस π/2. वेरी सिंपल, वी ऑलरेडी नो दैट. एंड सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी व्हाट? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टैंजेंट्स एट अल्फा एंड बीटा होता है A cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2, मतलब थीटा प्लस π/4 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2, कॉमा B sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2. इसका लोकस फाइंड करना है तो आई कैन टेक इट एज h कॉमा के, एंड नाउ आई कैन से कि cos थीटा प्लस π/4 इक्वल्स टू √2h/a. थिंक ऑफ इट, ये 1/√2 है, तो सॉरी दिस इज 1/√2, तो h/√2 आएगा, h अपॉन a√2 एंड अपॉन a. And similarly, if I compare these two, I will get sin theta plus π/4 equals to k/√2b. Now we have to eliminate the theta. Very
easily we can eliminate the theta as square and add, and I will get h square by 2a square plus k square by 2b square equal to 1. And so finally the locus will be x square by a square plus y square by b square equals to 2. So these are some questions related to conjugate diameters. Usually syllabus में नहीं है, but इधर उधर कहीं भी आ सकता है, passage में आ सकता है. So you have to understand this just for the JEE Advanced. Mains में there is no need of all these things. Thank you.